Good morning to all students. Today we will learn about the concepts of sequential logic circuits. Okay, looking to your syllabus, it is written here serial and parallel adders in unit second. But serial adder, serial adder in serial adder we must use D flip flop. D flip flop that is a part of sequential logic circuit. Okay, so to study the serial adder and barrel shifter, we have to study about sequential circuits, and in sequential circuits we have to study about D flip flop. So that's why we are studying today the topic sequential logic design, just to study about serial adder. In serial adder, D flip flops and sequential circuit is used. Therefore, we are studying sequential logic circuit today. Okay. So it is the just the beginning of your third unit, and these uh, uh, these topics are left, and serial and parallel adder, BCD adder, and barrel shifter and ALU, and one another topic is comparator and driver and multiplex display. These are remaining topics. So just to study the serial adder, we are studying sequential logic circuits, and in sequential logic circuit design, we are studying today the D flip flop, the working of D flip flop. So first of all, you should know the difference between combinational and combinational and sequential logic circuits. Okay, so you study the you have gone through the multiplexer, encoder, decoder, half adder, full adder, and half subtractor, full subtractor at all. These are types of combinational circuits. Okay, but the serial adder is a type of sequential logic circuit. Okay, so what is the difference between combinational and logic sequential logic circuits? It is presented here in today's lecture. So a sequential logic circuit consists of a combinational circuit. It means to say the combinational logic circuit is just a part of sequential logic circuit with storage elements connected as feedback to the combinational circuit. Let us consider this figure. In this, input is presented here, input is here, and input is provided to the combinational logic circuit, and here the output of combinational logic circuit. But in sequential circuit, a memory element is present, which provides the feedback again back to the input side of the combinational logic circuit. So additional memory element is present in sequential logic circuits to store the elements, storage of elements, and it stores what? मेमोरी एलिमेंट क्या स्टोर करेगा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के अंदर? या तो 0 स्टोर करेगा या फिर 1 स्टोर करेगा. इतना सा काम है इसके स्टोरेज का, क्योंकि आप पढ़ रहे हो डिजिटल सिस्टम डिजाइन, और डिजिटल सिस्टम डिजाइन में डिजिट जो होती है बाइनरी, वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स, आइदर 0 और 1. सो या तो ये 0 को स्टोर करेगा या फिर 1 को स्टोर करेगा और प्रोवाइड कर देगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के इनपुट के अंदर. तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एक ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जिसके अंदर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है, और उसके साथ ही साथ उसमें स्टोरेज एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं एज अ फीडबैक. तो इसका जो आउटपुट है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है, वो डिपेंड करता है सीक्वेंस ऑफ इनपुट. अभी अपन पढ़ेंगे आगे किस तरीके से डिफाइन करता है. द आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स and inputs, past and present inputs, and it stores information from past inputs.
Okay, so from past inputs, it stores the information here along with, and it provides the feedback as well as storing the inputs. So ये तो स्टोरेज के काम आते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। तो स्टोरेज एलिमेंट्स अपने पास कौन कौन से होते हैं इन जनरल लाइफ अपन बात करें तो आपने पढ़ा होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, तो उसके लिए यूज आता है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में इतना सा डिफरेंस है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में मेमोरी एलिमेंट होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, प्लस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स के ऊपर, जबकि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की बात करते हैं। सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट एंड प्रीवियस स्टेट ऑफ सर्किट। ये एक बेसिक एग्जांपल या फिर इसको कह सकते हैं डायग्राम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक बेसिक डायग्राम है, SR फ्लिप फ्लॉप इसको कह सकते हैं अपन, जो अपन आगे समझेंगे। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे इनपुट है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है ना क्यू बार जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ढंग से देखना इसको, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर वाले नैंड गेट के इनपुट में जा रहा है। तो आउटपुट फ्लो हो रहा है अगेन इनपुट, एंड जो यहाँ पे जो ऊपर वाला आउटपुट है Q कहाँ पे जा रहा है, नीचे वाले नैंड गेट के इनपुट में जा रहा है। तो आउटपुट यहाँ पे तो स्टोर हो चुका है, Q की जो भी वैल्यू है वो Q में स्टोर हो गई है, बट अगेन ये एज अ फीडबैक कहाँ पे जा रहा है, R बार के साथ इनपुट में जा रहा है। तो Q बार जो है इस पे डिपेंड करेगा Q के प्रीवियस इनपुट के ऊपर, Q की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका Q बार, और Q जो है वो Q बार की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर ही इनपुट, दोनों के अंदर ही जो आउटपुट है वो एज अ वापस इनपुट फीडबैक की तरह प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट, फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट, एंड एक टेबल आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी इन सब के अंदर, स्टेट टेबल। सो स्टेट टेबल एक ट्रूथ टेबल का एक्सटेंशन है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, आउटपुट फॉर ऑल कॉम्बिनेशनल ऑफ इनपुट्स एंड प्रीवियस स्टेट। अगर ओनली इनपुट और आउटपुट के बीच में आपको रिलेशन प्रोवाइड करना होता ना, तो उसको अपन कहते हैं ट्रुथ टेबल। बट ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है एक तो कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द इनपुट्स, और प्रीवियस स्टेट्स के लिए भी ये आउटपुट को शो कर रहा है। तो इसलिए इसको ट्रुथ टेबल नाम न देकर इसको अपन कहते हैं स्टेट टेबल, ठीक है। ये कहाँ से है? ओके, सो स्टेट टेबल अपन किसको बोलते हैं, स्टेट टेबल इज shows the relationship between output and combination, output for combinations of all the inputs, and along with that previous states, whatever it doesn't matter, it is either it is 0 or it is 1 or it is the value Q and Q bar. So this is the basic example of a sequential circuit, and these three lines are important for sequential logic circuits. Sequential circuit receives the binary information from the external inputs with
and with the present state of the storage element and together determine the binary value of output। इस लाइन का क्या मतलब होता है ये देखते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, इसको आपको एग्जाम्पल से समझना है। तो ये जो डायग्राम था इसको अपन देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है क्यू बार की वैल्यू, तो क्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्यू बार विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, नैंड गेट है एक तो आर बार, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है क्यू की वो यहाँ पे जा रही है यहाँ पे इसके इनपुट में, तो आर बार डॉट क्यू का होल बार। तो ये जो आउटपुट है क्यू बार ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट क्यू पे और इनपुट आर बार पे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे द बाइनरी द सीक्वेंशियल सर्किट रिसीव्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इनपुट दैट इज आर बार एंड विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टोरेज एलिमेंट। अब क्यू में यहाँ पे 0 स्टोर होगा तो यहाँ पे 0 चला जाएगा, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे आपके इनपुट आ जाएगा 1। तो इसको अपन कहते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टोरेज एलिमेंट together determines the binary value of output। Okay, the output in a sequential circuit are a function of not only the inputs but also the present state of storage elements। ये इसका मतलब होता है Q की वैल्यू प्रेजेंट के अंदर जो भी है वो उस पे डिपेंड करेगा आउटपुट आपका Q बार, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन R बार, जो कि इसका इनपुट है ओनली इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो स्टोरेज एलिमेंट होगा यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू है 0 या 1 उस पे भी डिपेंड करेगा ये इसका आउटपुट। ये लिखा हुआ है सेकंड लाइन के अंदर। थर्ड लिखा हुआ है द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स एज वेल एज द प्रेजेंट स्टेट। समझ में आ गई बात। And there are two main types of sequential circuits। एक होता है, इन वर्ड्स को बेटा ढंग से समझना, बहुत ही काम आने वाले हैं ये दोनों वर्ड्स, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। There are two main types of sequential circuits। The first one is synchronous sequential circuit and the another one is asynchronous sequential circuits। ठीक है, तो ये आप कैसे पढ़ेंगे, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब होता है इट इज अ सिस्टम whose behavior can be defined from the knowledge of its signal at discrete instants of time। आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पढ़ा होगा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सिग्नल्स। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज दैट इज 0 1 2 3 4, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो होते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 2.5, तो 2.5 जो है ये डिस्क्रीट नहीं है, ये है कंटिन्यूअस, या इसको अपन कह सकते हैं एनालॉग। तो ये है, दिस इज नॉट डिस्क्रीट, दीज वैल्यूज आर डिस्क्रीट वैल्यूज एंड दिस इज नॉट अ डिस्क्रीट वैल्यू। सो synchronous sequential circuits are the systems whose behavior can be defined from the knowledge of its input signals। knowledge of its input signals means नॉलेज मीन्स यहाँ पे 0 है या 1 है उस पर डिपेंड करता है, ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कैन बी डिफाइंड फ्रॉम नॉलेज ऑफ इनपुट सिग्नल्स एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब आपने ये पढ़ा होगा, जैसे आपका सिग्नल है ए और ए के कैपिटल ब्रैकेट में लिख दिया आपने 1, तो 1 सेकेंड पे ए के अंदर स्टोर एलिमेंट क्या था, 0 था या 1 था। उसके बाद आपने लिख दिया A4, तो A4 पे इसकी सिग्नल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नॉलेज ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल्स। तो डिस्क्रीट के लिए अगर ओनली डिफाइंड है तो उस
सीक्वेंशियल सर्किट को अपन कह देंगे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर आपका इनपुट चेंज हो जाता है या आउटपुट डिपेंड करता है इसका असिंक्रोनस, उसको अपन कहते हैं असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, ये देखना आप लोग, इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट सिग्नल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट सिग्नल्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिस्क्रीट की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, एनी कर दिया है, बस इतना सा डिफरेंट है। डिस्क्रीट की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड द ऑर्डर इन विच द इनपुट चेंजेस। तो 2.5, 2.8, 3.7 कुछ भी आप लिखें, 3.2, तो ये इसमें टाइम वैलिड होगा किसके अंदर, असिंक्रोनस के अंदर, जबकि सिंक्रोनस के अंदर ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बेटा आप लोग नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपकी 3rd यूनिट के अंदर, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा है सीक्वेंशियल सर्किट और सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। ये जो है आपने पढ़ा था 2nd यूनिट के अंदर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंदर इनपुट के बहुत सारे हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो सर। 4 पॉइंट है ना, हाँ सीक्वेंशियल के हैं, हाँ तो सेकंड और थर्ड पॉइंट अपने। ये वाला सेकंड वाला, यस सर। सेकंड वाला कह रहे हो, हाँ। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट इज इन अ सीक्वेंशियल सर्किट आर अ फंक्शन ऑफ नॉट ओनली इनपुट्स बट ऑल्सो द प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स। तो इसमें मैंने ये समझाया था बेटा, जो आउटपुट है ना, इसके आउटपुट कौन कौन से हैं, क्यू और क्यू बार, क्यू और क्यू बार इसके आउटपुट है, ठीक है। क्यू और क्यू बार, क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये देखो क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एक इनपुट जा रहा है एस बार, तो ये इनपुट गया यहाँ पे एस बार, और दूसरा इनपुट क्या जा रहा है यहाँ पे क्यू बार, दूसरा इनपुट क्या है इसके पास, क्यू बार, तो ये गया यहाँ पे क्यू बार। और दोनों में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है बेटा इन दोनों के अंदर, NAND ऑपरेशन। तो एस बार डॉट क्यू बार का होल बार जो है इसके अंदर परफॉर्म हो रहा है। सिमिलरली जो आउटपुट क्यू बार है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू है यहाँ पे आर बार, तो ये रही आर बार, और नेक्स्ट कितनी है क्यू और ये हो गया इसका बार। अब देखो बेटा बार बार जो क्यू और क्यू बार की जो वैल्यू है ना, चेंज करते रहेंगे। ये तो इनपुट्स है एस और आर के 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो उस पे डिपेंड करेगी क्यू और क्यू बार की वैल्यू, तो क्यू और क्यू बार की वैल्यू भी चेंज होगी। तो क्यू बार पे डिपेंड कर रहा है आपका क्यू और क्यू पे डिपेंड कर रहा है आपका क्यू बार। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे इस लाइन के अंदर, द आउटपुट इन अ सीक्वेंशियल सर्किट आर अ फंक्शन ऑफ नॉट ओनली इनपुट्स। नॉट ओनली इनपुट्स का मतलब है एस और आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये, और आगे क्या लिखा हुआ है, बट ऑल्सो द प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टोरेज एलिमेंट। सिर्फ एस और आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है क्यू और क्यू बार की वैल्यूज पर भी ये डिपेंड कर रहा है इसका आउटपुट। ये लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर, समझ आ गया। यस सर। और थर्ड में, थर्ड में लिखा हुआ है द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट्स आर आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स एंड द प्रेजेंट टाइम। ये जो है ना नेक्स्ट स्टेट, एक बेटा इसमें स्टेट्स होती है, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ होगा आपके पास, जब अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा मैं। जो ये है क्यू और एक इसकी नेक्स्ट स्टेज होगी जिसको अपन लिखेंगे Qn+1। तो ये जो नेक्स्ट स्टेट है Qn+1 ये डिपेंड करेगी Qn के ऊपर। इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे द नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट का मतलब है Q(n+1). ये है ना जो सीक्वेंशियल सर्किट्स के लिए मैं आपको बताऊंगा, एक एक्साइटेशन टेबल होती है, एक्साइटेशन टेबल, जिसके अंदर Qn+1 जो है नेक्स्ट
state of the storage element, it also a function of external inputs. external inputs कौन सा है? external inputs and the present state. जो आप external inputs है जो R या फिर S है उस पर डिपेंड करेगी एक तो, एंड द प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट है इसकी Q ऑफ N, तो इनपुट पे तो डिपेंड करेगी, और जो इसकी प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट कौन सी? जो नेक्स्ट स्टेट से, ये जो Qn+1 है ना बेटा, ये इसकी फ्यूचर स्टेट है, ये इसकी क्या है? फ्यूचर स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है n+1, तो Qn+1 जो इसकी फ्यूचर स्टेट है वो Qn पे भी डिपेंड करेगी जो इसकी प्रेजेंट स्टेट है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्साइटेशन टेबल्स ऑफ वेरियस फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स में ओनली ट्रुथ टेबल नहीं होती है, इसमें एक एक्साइटेशन टेबल भी होती है। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? ये जो सिग्नल्स है ना S और R, इनको एक्साइट करना मीन्स इनपुट प्रोवाइड करना, ताकि यहाँ पे आपको आउटपुट मिल सके। ऐसा होता है ना कि भाई अपन किसी को एक्साइट करते हैं तो वो अच्छा काम करता है। एक्साइट मीन्स, तो यहाँ पे आप इसको एक्साइट करेंगे F और R इनपुट्स को, तो आपके पास आउटपुट मिलेगा Q एंड Q बार। ठीक है, एक्साइटेशन का मतलब होता है जस्ट उसको ट्रिगरिंग प्रोवाइड करना, उसको इनपुट प्रोवाइड करना, ये मतलब होता है एक्साइटेशन का। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप बेटा वहां पे समझ में आएगी। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट है? हाँ हाँ, ये सब समझाऊंगा मैं जो भी है ना ये सब। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट सबको पता है, एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, एनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, सबने पढ़े हैं। तो ये होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, जो इसका आउटपुट होता है वो ओनली डिपेंड करता है ओनली प्रेजेंट इनपुट के अंदर, इनपुट के ऊपर। तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स, यही होता है इसके अंदर। The logic gates accept the signal from input and generates the signals to the output as per the combinations of input। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट अपन पढ़ चुके हैं। ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ये वापस आ गया, इसको भी अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो कॉम्बिनेशनल वर्सेस सीक्वेंशियल, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। So combinational logic circuit always gives the same output for a given set of inputs। सही है, तो adder always generates sum and carry regardless of previous input। previous input का मतलब है, जैसे यहाँ पे हाफ एडर मान लिया, हाफ एडर के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और तो इसका आउटपुट कितना आएगा? सिर्फ इसका जो आउटपुट आएगा एट अ टाइम, वो या तो ओनली 0 0 पे डिपेंड करेगा, फिर नेक्स्ट आउटपुट ओनली 0 1 पे डिपेंड करेगा, नेक्स्ट आउटपुट ओनली 1 0 पे डिपेंड करेगा, और उसके आगे वाला आउटपुट 1 1 पे डिपेंड करेगा। तो 1 1 के कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी 1 1 के कॉम्बिनेशन का जो आउटपुट आ रहा है वो पहले तीनों कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंदर। अब देखो बेटा, सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर क्या होता है? स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड इट्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन प्लस इनपुट। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन प्लस इनपुट। ठीक है, इसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं होती है, इसमें स्टोरेज एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर नहीं होती है। ठीक है, सो अ गिवन इनपुट माइट प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। सही है, अब देखो इसका एग्जांपल है टिकट काउंटर। टिकट काउंटर जो है, अब आप सब टिकट्स बुक करवाते हैं, तो ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, एक जो कोच होता है ट्रेन का, उसमें 72 पैसेंजर, स्लीपर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 72 सीट्स होती है। तो जैसे ही किसी ने भी, जैसे मैंने 2 सीट्स बुक कर ली और सबसे पहले मैंने करी, तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है 70। ठीक है,
और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये है टिकट काउंटर, क्या है, मेमोरी एलिमेंट है। तो 72 में से 70 हो गई, फिर किसी ने 5 टिकट बुक कर दी तो 65 हो गई। तो वो 65 को स्टोर कर देगा इन फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म के अंदर, वो स्टोर करता है। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ होता है वो स्टोर करता है, या फिर जो पाइथन या सी लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग की हुई होती है वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होते हैं इनके टिकट काउंटर्स के, और जो रेलवे जो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स है ना बेटा, इन सब के सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर भी सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं, जैसे सोनोग्राफी और एक्सरे जो लेते हैं आजकल ऑनलाइन, मतलब सोनोग्राफी होती कहाँ पे, और डॉक्टर के पास, मतलब जो क्या कहते हैं, एक्सरे आप मशीन के थ्रू कर रहे हो और डॉक्टर भी उसको एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब बात की बातें हैं, स्टोरेज एलिमेंट। बट जो कहने का मतलब है, इसमें जो स्टोर कर लेता है सीक्वेंशियल सर्किट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स के अकॉर्डिंग, जो है वो डिफरेंट स्टोर कर लेता है। तो टिकट काउंटर इज एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, and it advances when you push the button and output depends on previous state। अगर इनपुट में 0 टिकट अवेलेबल है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस इनपुट। ठीक है, तो इट इज यूजफुल फॉर बिल्डिंग मेमोरी एलिमेंट एंड स्टेट मशीन। स्टेट मशीन जो है, स्टेट मशीन अपन पढ़ेंगे, इसमें होती है फाइनाइट स्टेट मशीन जो है FSM, जो अपन पढ़ेंगे 3rd यूनिट के अंदर नेक्स्ट। ठीक है, तो स्टेट का मतलब होता है 0 और 1, ये स्टेट होती है। ठीक है ना, तो स्टेट मशीन के अंदर अपन पढ़ेंगे इसके स्टेट डायग्राम्स वेरियस फ्लिप फ्लॉप्स के। तो अभी अपन को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो ये डिफरेंस है बेटा कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के अंदर, और भी बहुत सारे डिफरेंस है जो आगे आते रहेंगे, अपन पढ़ेंगे। ये देखो, ये बहुत सारे डिफरेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो ये देखो, फर्स्ट क्या लिखा हुआ डिफरेंस, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट्स ओनली, टाइम इंडिपेंडेंट लॉजिक, whereas output is a function of clock, present input and the previous state of the system। तो समझ में आ गई फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है डू नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टोर डेटा। ठीक है, कॉम्बिनेशनल में नहीं होती क्योंकि इसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं लगा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है, हैव मेमोरी टू स्टोर द प्रेजेंट स्टेट एंड देन इट इज सेंड टू द कंट्रोल इनपुट और नेक्स्ट ऑपरेशन। तो इसका यही मतलब हुआ, क्यू का जो आउटपुट आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये बार बार जो भी आउटपुट होएगा वो इसमें प्रोवाइड होता रहेगा। समझ आ गई बात, 0 आया तो 0 चला जाएगा, 1 आया तो 1 चला जाएगा, फिर 1 आया तो 1, 0 तो 0। इस तरीके से जो है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, हैव मेमोरी एलिमेंट्स, और जो सेंड करता रहता है बार बार इनपुट को। ठीक है, थर्ड है बेटा, इट डज नॉट रिक्वायर्ड फीडबैक। कॉम्बिनेशनल सर्किट में फीडबैक लगा हुआ ही नहीं होता है, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। इट सिंपली आउटपुट्स द इनपुट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक डिजाइन। ठीक है, हाफ एडर फुल एडर में क्या होता था, और डिकोडर एनकोडर में जो आपने कॉम्बिनेशन बना दिया, या फिर मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो आपने कॉम्बिनेशन बना दिया उसके अंदर आउटपुट आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, सिक्वेंशियल के अंदर आएगा बट वो जो आउटपुट है वो स्टोर भी होगा और वो वापस फीडबैक की तरीके से भी काम आएगा। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द फीडबैक फ्रॉम the output to input that is stored in the memory for the next operation। अब देखो बेटा डिफरेंस नंबर 4, it is used mainly for arithmetic and boolean operations। it is used mainly for arithmetic and boolean operations। कौन सा वाला, कॉम्बिनेशनल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से थे अपने पास, हाफ एडर किया अपने, फुल एडर किया तो एडिंग सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज आते हैं आपके पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। जबकि आपको अगर रैम डिजाइन करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। so the sequential logic circuits are used for storing the data, hence used in RAM। okay, and logic gates are elementary building blocks, whereas
ये एक ब्लॉक होते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक जो कहते हैं ना, जबकि फ्लिप फ्लॉप्स आर द एलिमेंट्री बिल्डिंग यूनिट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बाइनरी स्टोरेज डिवाइस होता है, इसके अंदर बाइनरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये जो है इसमें क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंदर अपन ने एक भी सर्किट पे क्लॉक नहीं लगाई है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक, हैंस डज नॉट रिक्वायर ट्रिगरिंग टू ऑपरेट। ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, इसमें देखो बेटा, जो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है इसमें क्या लिखा हुआ है, it is these are clocked, it means triggered for operation with electronic pulses। तो अब इसका ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ट्रिगरिंग का मतलब यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे ये आपके पास क्लॉक जनरेट हो रही है, ये क्लॉक जा रही है, ठीक है, ये एक क्लॉक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू लो है, लो का मतलब जीरो भी आप कह सकते हैं, ये हाई है, हाई का मतलब वन कह सकते हैं आप। ठीक है, ये फिर लो, हाई, लो और हाई। अब देखो बेटा, क्लॉक जब जीरो से वन की तरफ बढ़ रही है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, और ये जो है ये जीरो से वन की तरफ जा रही है, मीन्स लो से हाई की तरफ जा रही है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं ट्रिगरिंग, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग। ठीक है, तो ये जो है जीरो से वन की तरफ जाना, इसको अपन कहते हैं ट्रिगरिंग। अगेन अगर करंट जो पल्स जो है वो वन से जीरो की तरफ आ रही है, तो इसको भी अपन कहते हैं ट्रिगरिंग। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर ये होता है, जब तक आप इसको ट्रिगरिंग प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक, ट्रिगरिंग का मतलब होता है क्लॉक प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। और ट्रिगरिंग बेटा दो तरीके से हो सकती है, एक तो होती है पॉजिटिव ट्रिगरिंग जो जीरो से वन की तरफ जाते हुए होती है, और दूसरी ट्रिगरिंग होती है जो वन से जीरो की तरफ जाने पे होती है, उसको अपन कहते हैं नेगेटिव ट्रिगरिंग। तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग और नेगेटिव ट्रिगरिंग, समझ आ गई बात। तो ये होती है ट्रिगरिंग का मतलब। अब देखो अपने पास जो है वो अपन पढ़ रहे हैं स्टोरेज एलिमेंट। ठीक है, स्टोरेज एलिमेंट्स के अंदर दो तरीके के अपने पास है, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, काउंटर भी पढ़ेंगे अपन और शिफ्ट रजिस्टर भी पढ़ेंगे। जो शिफ्ट रजिस्टर तो आपके इसमें यूज आएगा सीरियल एडर के अंदर। तो इसमें अपन देखो जो लैचेस एंड जो फ्लिप फ्लॉप है, अब इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है स्टोरेज एलिमेंट्स जो होते हैं लैचेस। तो स्टोरेज एलिमेंट इज अ डिजिटल सर्किट can maintain a binary state indefinitely until directed by an input signal to switch the state। जब तक इसको आप दूसरा इनपुट नहीं दोगे तब तक वो बाइनरी स्टेट को मेंटेन करके रखेगा ऑन स्टोरेज एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा आप लोग, द मेजर अमॉन्ग वेरियस स्टोरेज एलिमेंट्स आर number of inputs this the manner in which the input affect the binary। अब इसमें क्या होता है बेटा, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप के अंदर सिर्फ डिफरेंस होता है, लैच के अंदर क्लॉक की ट्रिगरिंग की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ ट्रिगर की ट्रिगरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लैच के अंदर आप डायरेक्ट क्लॉक पल्स दे दो, और क्लॉक पल्स को नहीं करो लैच के अंदर तो भी चलेगा, बट क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कहीं 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 आपको लिखा हो मिलेगा लैचेस में क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, लैच में क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है बट ट्रिगरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है लैच के अंदर। ठीक है, जबकि फ्लिप फ्लॉप में ट्रिगरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रिगरिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ पल्स। ठीक है, ट्रिगरिंग मीन्स टू प्रोवाइड अ पल्स। अब देखो इसमें जो लैचेस है, a latch has
a feedback path, so information can be retained by a device. ठीक है, therefore latches can be used a memory devices and can store 1 bit of data for long time as the device is powered. डिवाइस को जब तक आप पावर देंगे, ठीक है, क्लॉक पावर का मतलब यहाँ पे क्लॉक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। डिवाइस को जब तक क्लॉक मिलती रहेगी, होती रहेगी, ये जो है लैच वो उसको स्टोर करता रहेगा, तो मतलब स्टोर रहेगी उसमें, चाहे 0 वैल्यू हो चाहे 1 वैल्यू हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट एज द नेम सजेस्ट लैचेस लैच ऑन टू इंफॉर्मेशन एंड होल्ड इन प्लेस। लैच में ये होता है जो आप इंफॉर्मेशन देंगे ना, जैसे 0 प्रोवाइड की तो वो 0 को स्टोर करके रख देगा, 1 प्रोवाइड किया तो 1 को स्टोर देके रख देगा। अब क्या होता है, लैच जो, ये देखो डिफरेंस लिखा हुआ है लैच एंड फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ये आपको मैन याद रखना है। लैचेस आर वेरी सिमिलर टू फ्लिप फ्लॉप बट आर नॉट सिंक्रोनस डिवाइसेस and do not operate on clock edges at flip flops do। इसका मतलब क्या है, लैच को, इसका सीधा सीधा मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो है लैच जो है उसमें क्लॉक को ट्रिगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये है लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस। अभी तक बेटा किसी को कोई भी डाउट है क्या इसके अंदर? लैच जो मैंने समझाया है कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल लॉजिक के बीच में मैंने डिफरेंस बताया आपको, ठीक है। और सीक्वेंशियल सर्किट का इंट्रोडक्शन, कॉम्बिनेशनल तो सबको आ गया, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जो सबको समझ में आ गया। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, तो किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? हाँ चेतन बोलो, क्या हुआ? तो प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होंगे? प्रैक्टिकल बेटा जब हमको हायर अथॉरिटी से जो ऑर्डर आएगा ना, वो हम स्टार्ट कर देंगे तब, ठीक है। जब भी कॉलेज मतलब कॉलेज वाले कहेंगे हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की लेबोरेटरी सारी तैयार है, सारी फैकल्टीज के पास, ठीक है। तो जब भी हमारे पास आएगा ऑर्डर हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल जो है आपको, चलिए मैं आपको एक बार